آپ دیکھ رہے ہیں آزاد بول انڈیا کا ہیڈ لائن شو۔ آج ہے 7 اکتوبر 2024 اور میں ہوں عادل خان آزاد۔ دنیا کے سب سے بڑے اخباروں سے چنی گئی سب سے بڑی خبروں میں آج آپ دیکھیں گے 7 اکتوبر کی پہلی برسی منا رہا اسرائیل۔ حماس نے 7 اکتوبر کو بتایا ٹرننگ پوائنٹ۔ غزہ اسرائیل جنگ کا 1 سال پورا۔ آج پھر حماس نے کیا بڑا راکٹ حملہ۔ ٹیل اویو سمیت کئی شہروں میں بجے سائرن، کئی لوگ زخمی۔ حزب اللہ نے کیے بڑے حملے، کئی علاقوں میں اسرائیلیوں کے زخمی ہونے کی خبر۔ نہیں روک پایا آئرن ڈوم، اسرائیلی فوجی کی لبنان بارڈر پر موت۔ ایران کے سپریم کمانڈر علی خامنئی بولے 1 سال میں 70 سال پیچھے پہنچ گیا اسرائیل۔ اسرائیل پر 1 سال میں امریکہ نے خرچ کیے قریب $18 بلین، نتیجہ 0۔ اور روس نے اڑایا یوکرین کا شپ، ہتھیاروں سے بھرا تھا جہاز۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کو ایک حملہ ہوا حماس کی طرف سے، اور آج 7 اکتوبر 2024 سے یعنی پہلی اینیورسری ہے یا پہلی برسی ہے۔ اسرائیل میں جہاں اسے لے کر شوق منایا جا رہا ہے، غم منایا جا رہا ہے، وہیں غم غزہ میں بھی ہے، لیکن وہاں پر خوشی بھی ہے اس بات کی کہ ہم نے یہ حملہ کیا اور بڑا حملہ کیا، بڑی چوٹ پہنچائی اس اسرائیل کو جو 70 سال سے ہم پر ظلم برپا رہا تھا۔ غزہ کے لوگوں کا یہ ماننا ہے۔ اسرائیل کے لوگ لگاتار آج بھی اپنوں کو یاد کر رہے ہیں جنہیں انہوں نے 7 اکتوبر 2024 کو کھویا تھا۔ آج جگہ جگہ انہوں نے کئی ایک چیزوں کو آرگنائز کیا، ایک طریقے سے یوں کہیں کہ پبلک میٹنگز تھی، انہوں نے آرگنائز کی۔ بنجمن نیتن یاہو کے گھر کے باہر گئے اور وہاں پر پھر ایک دم سائرن بجنے لگے اور حماس کی طرف سے بڑا حملہ ہوا۔ یہ سبھی اپنے بنکروں میں جا کر چھپ گئے۔ 6:29 پر 7 اکتوبر 2023 کو یہ حملہ ہوا تھا۔ ایک ریمائنڈر کے طور پر میں انہیں یاد دلا دوں جنہیں اس کی ڈیٹیل کم معلوم ہے۔ اس کے بعد اس حملے میں حماس کی القسام بریگیڈ کے حملے میں 1200 اسرائیلی مارے گئے تھے 1 سال پہلے۔ 251 لوگوں کو حماس کے لڑاکے اٹھا کر لے گئے تھے غزہ میں۔ پھر کچھ دور کا وہ ایکسچینج ہوا ہوسٹیجز کو چھوڑنے کا، اور کچھ ہوسٹیجز مارے گئے۔ اب بھی لگ بھگ 97 ہوسٹیجز اسرائیل کے حماس کے قبضے میں ہیں، لیکن یہ جنگ جاری ہے۔ آج بھی غزہ پر زبردست حملے ہوئے ہیں۔ آج حماس نے بھی راکٹ داغے کئی دنوں کے بعد، کیونکہ اب ان کی راکٹ سے حملے کی جو قوت ہے وہ کم ہو گئی، یہ بتایا جا رہا ہے، لیکن آج جو راکٹ داغے اس سے کافی تباہی ہوئی ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں آگے، اور یہ آپ نے ہیڈ لائن پہلی دیکھ لی۔ اسرائیل مارکس ایئرز سنس اسٹارٹ آف حماس آنسلاٹ ایز غزہ راکٹ ٹارگٹ ساؤتھ اینڈ ٹیل اویو۔ ٹھیک ہے، تو یہ لوگ اپنے طریقے سے سب لوگ کچھ غم منا رہے ہیں، کچھ خوشیاں منا رہے ہیں، کچھ اسے دیکھ رہے ہیں کہ 1 سال میں کیا ہوا۔ میں لیٹ شو اس لیے لے کر آیا ہوں آج تاکہ کچھ تازہ ہیڈ لائنس آپ کو بتا سکوں۔ بالکل، کیونکہ آج ایک بہت بڑا دن ہے، کچھ بڑے ایونٹس، کچھ بڑے انسیڈنٹس ہو سکتے ہیں۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس نے دوپہر کو لگ بھگ یہ میپ جاری کیا اور یہ بتایا کہ ٹیل اویو میں، سینٹرل اسرائیل میں سائرن بج رہے ہیں۔ 7 اکتوبر کا 1 سال پورا ہونے کے باوجود حماس کی طرف سے راکٹ داغے گئے ہیں۔ IDF نے ہی اس میپ کو شیئر کیا، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا پورے سینٹرل اسرائیل میں سائرن بجے اور لوگ شیلٹرز کی طرف بھاگ گئے۔ ٹائمز آف اسرائیل کی ایک اور ہیڈ لائن کہتی ہے کہ حماس کے آج کے راکٹ حملوں میں 2 لوگ معمولی طور پر زخمی ہو گئے۔ 5 راکٹ آئے حماس کی طرف سے ٹیل اویو میں، اور 7 اکتوبر کا جو لوگ غم منا رہے تھے ان کے پبلک گیدرنگ میں انہوں نے خلل ڈالا۔ لوگ اپنی جان بچا کر 1 سال بعد بھی بھاگتے نظر آئے۔ اب سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ 1 سال کی جنگ میں اسرائیل نے آخر حاصل کیا کیا، سوائے 80 سے 85% غزہ کو تباہ کرنے کے، اور اب وہ لبنان کو تباہ کروائے۔ جس ملک کے لوگ 1 سال سے خوف کے سائے میں جی رہے ہوں، اس ملک کی حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ حملوں سے بڑا ہوتا ہے خوف۔ اس خوف کو ختم کرنا ہے، اور کوئی خوف ہو، کوئی جنگ ہو، وہ صرف ٹیبل پر ختم ہوتی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں بینگ اے جرنلسٹ، کیونکہ ہم نے وہ چیزیں دیکھی ہیں جو آپ کو نہیں دکھا سکتے۔ ہم چاہتے ہیں جنگ بند ہو جائے اور دونوں طرف کے لوگ محفوظ محسوس کریں، آزادی سے جئیں۔ خیر، حماس ٹرمز October 7 ایز اے ٹرننگ پوائنٹ ان دا فائٹ اگینسٹ آکوپیشن۔ قبضے دھاریوں کے خلاف، آکوپیشن کہتے ہیں، آکوپیشن کے خلاف حماس نے 7 اکتوبر کی تاریخ کو ایک ٹرننگ پوائنٹ بتایا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ یہ فلسطین کی فلاح بہبودی، سلامتی اور فلسطین کی خود مختاری کے لیے بے حد ضروری تھا جو ہم نے حملہ کیا،
क्योंकि हम 70 साल से लगातार अपनी ज़मीनें कब्जाते हुए देख रहे थे। हम लगातार जुल्म सह रहे थे। रुक रुक कर IDF के हमले हम पर हर साल होते थे। हमारी इमारतों को तबाह किया जाता था, औरतों बच्चों को मारा जाता था। 7 अक्टूबर 2023 को किया गया हमला हमारे पास आखिरी चारा था और वो टर्निंग पॉइंट था। हमास ने इसे अपनी जीत की तरह दिखाया है। 7 अक्टूबर 2023 की ये फ़ोटो है जब इजराइल की टैंक पर हमास या फिर गज़ा के जो आम लोग हैं वो अपना झंडा फ़लस्तीन का लेकर चढ़ रहे थे। खैर, इस जंग में अब तक 42,000 लगभग लोग मारे जा चुके हैं गज़ा के, जिनमें औरतें बच्चे ज़्यादा हैं। इस बात को भी हमें याद रखना होगा। आज हमास ने जो हमला किया फिर से टेल अवीव और बाकी सेंट्रल इजराइल के इलाकों पर, उसकी ये तस्वीरें तामीन ने शेयर की हैं। आज जो रॉकेट इस्तेमाल किए हैं हमास ने वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थे, उनसे बड़ी तबाही मची है। और ये कहा गया है कि कफ्र हबाद इलाका है टेल अवीव के करीब, और वहाँ पर इस तरीके की तबाही है। हाइफा में जो है वो हिजबुल्लाह की मिसाइल गिरी हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की ही हेडलाइन बताती है कि 5 लोग ज़ख्मी हुए हैं बुरी तरीके से हाइफा में, क्योंकि एयर डिफेंस फेल हो गया, यानी कि आयरन डोम फेल हो गया। आयरन डोम एक मरतबा फिर से फेल हुआ इजराइल का, और हिजबुल्लाह के रॉकेट्स को, उनके मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में नाकाम साबित हुआ। यहाँ लिखा है एयर डिफेंस फेल टू इंटरसेप्ट हिजबुल्लाह रॉकेट बैरेज। हिजबुल्लाह ने जो रॉकेट की बौछार की उसे एयर डिफेंस इजराइल का रोक नहीं पाया, और हाइफा में बहुत तबाही मचाई। 30-30 फीट के गड्ढे पड़े हैं, यानी इस बार हिजबुल्लाह ने बहुत बड़े रॉकेट्स दागे हैं। ये उनकी तस्वीरें हैं। इनमें कई लोग ज़ख्मी हैं, हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया गया कि कई लोग मारे गए। हिजबुल्लाह की खबरें और लेबनान की खबरें जो देती है वेबसाइट अल मायदीन, जिसके हवाले से मैं कई खबरें आपको दिखाता हूँ रोज़, वो अल मायदीन के जो सोशल मीडिया अकाउंट और वेबसाइट है आज हैक हो गए। उन पर बहुत ही भद्दे गंदे किस्म के कमेंट आ रहे थे। वेबसाइट तो बिल्कुल चल नहीं रही थी, लिहाजा आज वेबसाइट अल मायदीन के हवाले से कोई ख़बर नहीं है। अल मायदीन चैनल भी है, अखबार भी है, वेबसाइट भी है, उनके हवाले से आज कोई ख़बर नहीं, वो हैक हो चुकी है। ये एक इजराइल डिफेंस फोर्स ने IDF अपने ऑफिशियल अकाउंट से वीडियो शेयर किया है, जिसकी आप शॉर्ट्स देख रहे हैं। ये एक ऐसी तबाही है, ऐसा लग रहा है कि कोई रोड JCB से खुदी पड़ी है, दूर तक खुदी पड़ी है, उसमें सीवर डाला जाना हो। लेकिन ये हिजबुल्लाह के रॉकेट से हमले हुए हैं, जिसके बारे में आज ये बताया जा रहा है कि आज कुछ ज़्यादा पावरफुल रॉकेट हिजबुल्लाह ने इस्तेमाल किए हैं 7 अक्टूबर के दिन। इन्ना की एक हेडलाइन है ईरानी वेबसाइट, ईरानी अखबार की TV की। उन्होंने लिखा है कि इजरायली ट्रूप किल्ड इन लेबनान बॉर्डर, और ये उसकी तस्वीर है जो इजराइल का फ़ौजी लेबनान बॉर्डर पे हिजबुल्लाह के साथ जंग में मारा गया है। हर रोज़ लोग इजराइल के भी मारे जा रहे हैं, हिजबुल्लाह के भी मारे जा रहे हैं। जंग में यही होता है। और ये बंदा जो था वो जंग लड़ने गया था, इनका ये इरादा था कि हिजबुल्लाह के लोगों को ख़त्म करेंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने एक हेडलाइन दी है कि अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज की तारीख तक एक साल में इजराइल के ऊपर, इजराइल को बचाने के लिए, इजराइल को हथियार देने के लिए 17.9 बिलियन डॉलर, लगभग 18 बिलियन, नॉट मिलियन, 18 B फॉर बिलियन, 18 बिलियन डॉलर की मिलिट्री एड दी है इजराइल को पिछले 7 अक्टूबर से। और ये रिपोर्ट जो है छपी है कुछ न्यूज़ नेटवर्क में। 18 बिलियन डॉलर की मिलिट्री एड का मतलब है गोला बारूद, मिसाइल, बंकर बस्टिंग बॉम्ब और न जाने क्या क्या, वो बॉम्ब जिससे हसन नसरल्ला मारे गए, ये सब कुछ इसकी मिलिट्री एड मदद दी गई है। अगर ये खबरें ना छपें तो हमें ये लगता था इजराइल खुद में सक्षम है किसी भी जंग को जीतने के लिए, लेकिन तब समझ में आता है जब हम ये सब पढ़ते हैं कि बिना मदद के इजराइल टिक नहीं पाएगा एक महीना भी किसी जंग में। सैयद अली ख़ामनेई, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, उन्होंने आज 6:29 पर, ठीक 6:29 पर एक ट्वीट किया, एक पोस्ट की एक्स पर। 6:29 पर ही पिछले साल इजराइल पर हमले शुरू हुए थे। तो 6:29 पर, जब भारत में 8:59 थे, सुबह 2.5 घंटे का फासला है, उन्होंने ये लिखा, अल-अक्सा फ्लड ऑपरेशन सेट द ज़ायनिस्ट रजीम बैक 70 ईयर्स। कि अल-अक्सा फ्लड जो ऑपरेशन हमास ने चलाया, उसने इजरायली हुकूमत को, इजरायली रजीम को
70 साल पीछे ढकेल दिया। इजराइल को 70 साल पहले पीछे ढकेल दिया है। वहाँ जहाँ से इजराइल नाम का मुल्क बना, जहाँ से उसकी शुरुआत हुई, आज इजराइल वहीं खड़ा है, उतनी ही कंगाली में, उतनी ही तबाही में। इसका मतलब ये था। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक हेडलाइन है, इन्होंने अपना डाटा दिया है। इस पर मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये खबर है, हेडलाइन है, तो बीइंग अ जर्नलिस्ट हमें ये पढ़नी है, आपके सामने रखनी है। हम खबर देंगे, अगर हम अपना कुछ बोलेंगे तो एजेंडा प्रोपेगेंडा होगा। आप अपने कमेंट करने के लिए आज़ाद हैं। एक साल में इजराइल ने बताया कि उसने क्या खोया है। आईडीएफ का डाटा ये बताता है कि एक साल में उसके महज 728 फौजी इस जंग में मारे गए हैं, 728। और ये बताया गया है कि 26,000 रॉकेट इस दौरान इजराइल पर दागे गए हैं। आप 26,000 पर तो यकीन कर लेंगे, लेकिन 728 पर कोई 10,000 बताएगा, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख। आपको अपनी बात कहने की आज़ादी है। और उनका ये कहना है आईडीएफ का इसी में ही बायलाइन में कि 17,000 जो हमास के लड़ाके हैं, ये टेरर ऑपरेटिव्स कहते हैं, हमास के लड़ाके या बाकी रेजिस्टेंस फोर्सेस के या पीआईजे के लोग, ये 17,000 कुल ये लोग बंदूकधारी मारे गए हैं गज़ा में। 800 जो हैं वो लेबनान में मारे गए हैं, हिजबुल्लाह के लोग। और 4700 4,700 टनल और शाफ्ट्स जो हैं गज़ा में मिली आईडीएफ को, उन्होंने उसे तबाह कर दिया। और इन्होंने इन दिनों में 11,000 हिजबुल्लाह की पोजीशंस को हिट किया है। तो ये एक साल का डेटा आईडीएफ की तरफ से दिया गया है। इजरायली आर्मी ने जो है जो कुछ और भी बताया है वो ये बताया है, इसमें आप देखिए कि जो 26,000 रॉकेट थे वो सिर्फ गज़ा से नहीं आए थे। पहले ही दिन 5-6 हज़ार 7 अक्टूबर 2023 को दाग दिए थे। हिजबुल्लाह से भी आए, सीरिया इराक से भी आए। तो गज़ा का जो हिसाब किताब है वो ये है कि 726 सोल्जर्स मारे गए, करंट रिपोर्ट ने बताया, ये इजराइल ने बताया। और 13,200 रॉकेट अकेले गज़ा से दागे गए इजराइल पर। 12,400 रॉकेट हिजबुल्लाह ने दागे लेबनान से। 400 मिसाइल ईरान ने दागी हैं 7 अक्टूबर से। ये इनमें ईरान के 2 हमले शामिल हैं। इजराइल ने क्या किया वो भी जान लीजिए। इजराइल ने इस दौरान पूरे गज़ा को तबाह किया। आपने देखा वेस्ट बैंक और लेबनान अब तबाही की तरफ है, वो तबाह कर रहे हैं। मैंने आज एक लेबनान का वीडियो देखा तो मैंने गलती की कि मैंने पढ़ लिया पहले कि लेबनान का है। वो बिल्कुल गज़ा का वीडियो था, एरियल शॉट था, ड्रोन चलता चला जा रहा था और सब कुछ तबाह था। अब ये बताती है मिडिल ईस्ट मॉनिटर की हेडलाइन कि गज़ा में एक साल के अंदर इजराइल ने 611 मस्जिदों को शहीद किया है। 611 मस्जिदों को मिसमार किया है, नस्तनाबूद किया है, ज़मींदोज़ कर दिया है। मस्जिदों से क्या, अब उनका ये कहना है कि इसमें से हमास ऑपरेट कर रहा था, इन मस्जिदों को गिराया जाना था। क्या वो इन खंडरों से नहीं कर सकता था? यहाँ से अजानें गूंजती थी, क्या ये मसला था? फिलहाल फिर भी फ़लस्तीनी नमाज तो पढ़ ही रहे हैं, खंडरों पर पढ़ रहे हैं। अब खंडरों को और खंडर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कुछ न्यूज़ नेटवर्क की आज की एक हेडलाइन है कि गज़ा में एक फ़लस्तीनी जर्नलिस्ट जो कि 19 साल का एक लड़का था वो मारा गया है इजराइल की एयर स्ट्राइक में। और इसे मारने से पहले इजराइल की तरफ से अखबार कहता है कि इजराइल की तरफ से उसे लगातार धमकियां मिल रही थी कि तुम गज़ा में वीडियोग्राफी करना और वहां की खबरें दिखाना बंद कर दो। इसने बंद नहीं किया। इसकी लोकेशन उन्हें पता थी इजराइल को, और इजराइल ने इसके ऊपर, इसके घर पर स्ट्राइक करके इसे ख़त्म कर दिया। अब ये ना गज़ा की वीडियो दिखा सकता है, न रिपोर्ट कर सकता है। आखिरी खबर है रूस की। रूस ने एक बड़ा मिसाइल हमला किया है और रूस ने दावा किया है, आरटी न्यूज़ की खबर है, कि उसने यूक्रेन के एक शिप को उड़ाया है। और इस शिप में, इस जहाज़ में, पानी के जहाज़ में हथियार भरे हुए थे जो कि अनलोड हो रहे थे। अनलोडिंग के वक्त रूस की मिसाइल ने इसे हिट किया और तबाह कर दिया। इनमें रखे हुए हथियारों को आग लग गई और ये इसका एक वीडियो रूस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जारी किया है। हेडलाइन शो में इतना ही। कभी देर होती है तो समझ कीजिए कि कुछ मसले हैं, और आज तो ये था कि ताज़ा आपको खबर दे सकूं। और अभी और कुछ हैपनिंग शाम तक हो सकती है। हमारे और उनके वक्त में फासला 2.5 घंटे का है। देखते हैं और आगे क्या होता है, आपको अपडेट कराएंगे। सलामत रहिए, खुश रहिए, अमन की दुआ करते रहिए।